सत श्री अकाल। तुसीं सारे देख रहे हो फतेह टीवी ते मैं तवलीन कौर सरगर्मियां प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत करदी हां। एक बार फिर तो असीं हाजिर हो गए तुहाडे सामने पंजाब दीआं मुख गतिविधियां लैके। 350 साल शहीदी नगर कीर्तन वजों गुरसिख परिवारां दे वल्लों भी सेवा की गई। उन्हां दे वल्लों जिहड़ी तेल दी सेवा वो की गई। गुरसिख परिवार वल्लों नगर कीर्तन दे काफले दी सारी गड्डियां दे विच तेल दी सेवा की गई। सेवा ही है जी, सेवा ही है। बस सेवा करके बंदा जड़ा है जी दिल खुश होता है। इस करके सेवा अपने उत्ते लईए। कोई किसी उत्ते किसी दे कहण ते या किसी नूं दसण वास्ते कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, अपनी आत्मा अपनी सेवा लई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16-17 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਭਰਾ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੋ ਜਦ 1968 ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। तो 40 साल गुरुद्वारा उन्होंने चलाया गा, बाद असी उन्होंने सानू सौंपिया गा। जदों तो अगे करी जा रहे, जो हर सेवा तो अगे साढ़े कंधे नाल साढ़े नाल खड़े रहे। बस वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। संगतां दे वल्लों नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। उन्हां दे साध संगत गुरुद्वारा साहिब बेलगाम कर्नाटका विखे संगतां दे वल्लों नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। तो उस तो बाद उन्हां दे वल्लों प्रशादियां दा प्रबंध भी किया गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई है कि जेड़े कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रबंध नाल इत्थे जिहड़ी यात्रा आई है, सत्संग गुरुद्वारा कमेटी आप सारिਆਂ ਦਾ, खास तौर भाई साहब भाई जगदेव सिंह जी का, जिन्होंने जिस तरह भी गल की है उन्होंने इश्योर दिता है कि यात्रा इत्थे जरूर आएगी, जरूर आएगी। हालांकि लास्ट मोमेंट तक यही हो रहा सी, पता नहीं यात्रा के दर्शन होणगे या नहीं होणगे, पर वाहिगुरू की कृपा की है कि दर्शन इत्थे सानू होए ने। असीं साध संग पूरी साध संग जी वेलकम दी है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो वाहिगुरू अरदास करते हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते साडा गुरुद्वारा सारी संगत मिलजुल के इसे तरह खालसा पंथ की सेवा करते रहे। वाहिगुरू जी का खालसा। हुबली तो कोल्हापुर जाते हुए बेलगाम तो पहला गोवा की संगतां दे वल्लों 350 साल शहीदी नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। तो उन्हां दे वल्लों बहुत ज़्यादा प्यार जिहड़ा दिखाया गया। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो सारिया संगतां दा तह दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਬਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਆ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੋਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਗੋਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ 15-16 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗੋਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਦਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਜ ਦਾ ਇਹ ਗੋਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਦਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਲਗਾਉਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ गई। हमने पीछे 2 महीने पहले 24 कमेटियों का गठन किया था। ये हर सेक्टर से एक कमेटी बनाई, जैसे स्टील की अलग, टेक्सटाइल की 3 बनाई जिसमें डाइंग फिनिशिंग की अलग है, वीविंग और स्पिनिंग की अलग है और गारमेंटिंग की अलग है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आईटी की, सेमीकंडक्टर्स की, ऐसे हमने 24 सेक्टर्स की कमेटीज बनाई। इन हर कमेटी में 12 इंडस्ट्रियलिस्ट हमने लिए और जो इंडस्ट्री के लीडर थे उनको चेयरमैन बनाया। हर कमेटी में एक हमने एडीसी रैंक के ऑफिसर दिए जो पीसीएस भी हो सकते थे और आईएएस भी हो सकते। रिकॉर्ड टाइम में 2 महीने में हमने इन चेयरमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट्स लेनी चालू कर दी है। 24 की 24 कमेटियों की जो रिपोर्टें हैं वो हमें मिलनी चालू हो गई है। इसी हफ्ते में सब 24 कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। हम उसको इकट्ठा करके उनके जो सुझाव मिले हैं उनको एक कंसोलिडेट करके हम इसी साल में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले आएंगे जिसमें हर सेक्टर का ध्यान रखा जाएगा। वो कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है कि 1 साइज़ डजंट फिट ऑल। तो हम उस हिसाब से कमेटी की पॉलिसीज़ लाएंगे कि हर सेक्टर कवर हो जाए और हर सेक्टर को उनके सजेशंस के हिसाब से हम उनको पॉलिसीज़ में जो भी उनके सजेशंस हैं या व्यूज़ हैं उनका ध्यान रखा जाए और उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी हो और उनको जो हम इंसेंटिव पंजाब सरकार ने देने हैं वो हम दे सकें। रिसेंटली हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। एक वर्धमान स्टील ने 2500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है लुधियाने में। हैप्पी फोर्जिंग्स हैं, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की
इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, वो भी ये दोनों प्लांट स्टील के हैं और दोनों लुधियाने में हैं। टाटा स्टील जैसे कि आपको पता है पहले ही लुधियाना में आ रहा है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है पर अलग अलग जगह हैं। और जो टाटा स्टील आ रहा है उन्होंने बिजली का हमसे लोड ले लिया है और ट्रायल प्रोडक्शन चालू कर दी। वो बड़ी जल्दी कमर्शियल प्रोडक्शन उनके प्लांट की चालू हो जाएगी। उसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल वाले हैं, उन्होंने 950 करोड़ रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। वो एक उनका हॉस्पिटल ऑलरेडी मोहाली है, उसकी एक्सटेंशन करने जा रहे हैं 400 बेड हॉस्पिटल के साथ, और उसके लिए 950 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जो रिसेंटली इन्वेस्टमेंट अनाउंस की वो इन्फोसिस ने की है, वो मोहाली में अपना नया कैंपस ला रहे हैं जिसमें हाईली पेड 2500 जॉब्स वो देंगे और वन ऑफ इट्स काइंड होगा। इनके जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि इसका जो लीड एक इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाई करती है वो प्लेटिनम उसको सर्टिफिकेशन मिलेगी। और ये प्लांट कोई 2-2.5 साल में या ये जो कैंपस है तैयार हो जाएगा और 2500 लोगों को नौकरी मिलेगी। ये टोटल जो 4 इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन चारों को मिला के अराउंड 10,000 लोगों को नए रोज़गार पंजाब में मिलेंगे। सीएम भगवंत मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नाल मुलाकात हुई, बड़े साजगार माहौल दे विच हुई ते मैं उन्हां नूं पंजाब दे हड़ां दी सिचुएशन सारी समझाई कि किवें 2300 तो वध पिंड डुब गए, 5 लाख तो वध बंदे बेघर हो गए, 20 लाख तो वध बंदे प्रभावित हो गए, 3200 स्कूल टुट गए, 8500 किलोमीटर सड़कां मलबा बन गईयां, 60 के करीब जानां चलियां गईयां, 2500 के करीब पुल या पुलियां छोटियां और रुड़ गईयां। ईवन छोटे बच्चों दियां सिलेबस दियां किताबां भी रुड़ गईयां, छोटे बच्चों दी किताबां भी रुड़ गई। सानू उन्हां दा समैसटर अगे करना पैना, जो किताबें है नहीं पेपर किवें देणगे हो। सो मैं होम मिनिस्टर साहब नूं दस्सिया कि उन्होंने बड़े ध्यान नाल गल सुनी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल असीं पंजाब नूं होर माली सहायता होर जिन्ना भी हो सकदा वो करांगे। बाकी उन्होंने तो जी वो तो फैडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मालिक है, पर पक्ष रखना मेरा जिम्मेदारी है। मैनू पंजाब के लोगों ने मेरी जिम्मेदारी निश्चित की है कि मेरा पक्ष रखना मेरा बनता सी। मैं पक्ष ब्यौरा दिया गया है कि कितना नुकसान जो है पंजाब में हुआ है पूरा। देखो अभी तक तो हम 13,800 करोड़ का करें, लेकिन अब नीचे जाएंगे। आपने हिंदी में क्वेश्चन पूछा, मैं हिंदी में जवाब दे। नीचे जाएंगे तो शायद वो बढ़ जाए, 20,000 करोड़ के आसपास चला जाए। हर संकट में पंजाब देश के साथ खड़ा है। अब पंजाब पे संकट है तो देश को भी पंजाब के साथ खड़ना चाहिए। सर, जिस तरह से केंद्र ने 1600 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी, उसके बाद आपने कहा कि वो डीबीटी जो है प्रोसेस वो ठीक नहीं है। आप अपनी तरफ से सर पंजाब सरकार जो है अपनी तरफ से पंजाब सरकार को पैसा मिले आप अपनी तरफ से देंगे, तो क्या एक क्रेडिट लेने की होड़ भी चल रही है केंद्र और पंजाब सरकार के बीच में? नहीं, कोई क्रेडिट बात नहीं है। आज भी मैंने
एचएम साहब से बात की कि 1600 करोड़ तो एक ऊँट के मुंह में जी रहा है, तो आप हमें और पैसे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ओके दैट वाज ए टोकन मनी, हम और दें। उम्मीद कर सकते, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सरकार की तरफ से कैसे राहत कार्य कर रही है पंजाब के अंदर अभी? देखो अभी डीसिल्टिंग, जो रेत आ गया जमीनों पर, हमने जिसका खेत उसकी रेत, वो स्कीम चलाई है। बहुत बड़े लेवल पे रेत उठ रहा है। अभी गेहूं बीजने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि गेहूं बीजने के लिए हम जमीन तैयार कर सकें। मुझे उम्मीद है 2 लाख क्विंटल हम बीज फ्री दे रहे हैं। 5 लाख एकड़ जो प्रभावित हुई है उसके लिए 2 लाख एकड़ 2 लाख क्विंटल हम बीज फ्री दे रहे हैं। विधानसभा में भी हमने डीसिल्टिंग का और बाकी सारे कानून पास कर लिए। मानजोग हाई कोर्ट ने भी हमें इजाजत दे दी है कि आगे से ऐसा ना हो, तो उसके लिए सर रंगला पंजाब फंड को लेकर कहा जा रहा है अश्विनी शर्मा की तरफ से कि रंगला पंजाब फंड नहीं होना चाहिए। अश्विनी शर्मा कल मॉक सेशन में बोल रहे थे। पठानकोट से वो एमएलए हैं, इलेक्टेड हैं, उनको इलेक्टेड विधानसभा में आना चाहिए। मॉक विधानसभा में बोल रहे हैं, वहां आके हिसाब दें और हिसाब लें, हिसाब दें और हिसाब लें। ऐसे नहीं होता कि आप कहीं भी विधानसभा लगा लोगे, उसमें ये कर देंगे वो कर देंगे, ये अच्छी बात नहीं। वो तो बहुत सीनियर है, मेरे तो सीनियर। वो ये भी कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री से समय मांगा, आपको नहीं मिला, मैं भी मुख्यमंत्री से समय मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, जिसको मिल गया किस्मत है, अब क्या कर सकते। प्रधानमंत्री अगर मिलना नहीं चाहता बाढ़ पीड़ितों को, वो बिहार की महिलाओं के लिए पता नहीं क्या क्या पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।